Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it is hoped that you will be safe and sound at your homes. Let me first acknowledge the presence of myself, this Professor Muhammad Imran, Head of English Department, Apex Group of Colleges, Disca Campus. Today I am going to discuss your test number 4, Functional English, Become 1. Dear students, study like there is no tomorrow, because if you keep putting off your studies for tomorrow, you will probably be too late. Our great weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. You are capable of more than you know. But choose a goal that seems right for you and strive to be the best. However hard, aim high, behave honorably, prepare to be alone at times, and to endure failure persist. The world needs all you can give. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their targets, reach their potentials. So let's start from your paper discussion. Question number 1. Make sentences from the following idioms. 10 idioms जो है वो आपको दिए गए थे बेटा, उनके जो है वो सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने थे. सो नंबर 1 पे जो इडियम है, लीव इन द लर्च. लीव इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में साथ छोड़ जाना. फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव इन द लर्च. फेयर वेदर फ्रेंड्स भी एक जो है वो इडियम है, मतलबी दोस्त. इन दोनों इडियम को इकट्ठा मिला दिया जाए, दोनों में से जो भी आए तो फिक्रा बन जाता है कि मतलबी दोस्त मुश्किल में साथ छोड़ जाते हैं. नो एंड नेवर. नो एंड नेवर का मतलब होता है फौरन, यानी जल्द. दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट डिस्पोजल एज इट इज अ मैटर ऑफ नो और नेवर. हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत वाज़िया. देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल्स अगेंस्ट इनजस्टिस. फोर्थ वन, बोजम फ्रेंड. बोजम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, डीप फ्रेंड, गहरे दोस्त. अहमद इज माई बोजम फ्रेंड इन द क्लास. टर्न टर्टल. टर्न टर्टल का मतलब होता है उल्ट जाना. द बस टर्न्ड टर्टल ऑन द रोड. पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जुज़्व लाज़म. टीचिंग इज हिज पार्ट एंड पार्सल. ऑफ हैंड. ऑफ हैंड का मतलब होता है बगैर तैयारी के, विदाउट preparation. Ali made an important speech offhand. French leave. लीव का मतलब होता है जी बगैर इतला के छुट्टी करना. He often takes French leave from the office. Alpha and Omega. अव्वलो आखिर. He knows all the alpha and omega of business. By and large, मजमूई तौर पर. By and large, I am happy with my life. ये थे आप लोगों के 10 इडियम. इनके यूं सेंटेंस जो है बनाने थे. क्वेश्चन नंबर 2, definitions. There are 2 definitions, a determiner and subordinating conjunction. So number 1 पे determiners. Determiners are words that go in front of a noun, identify what the noun refers to. For example, bread is just a general term for the stuff we eat. But if someone says this bread or my bread, we know which particular bread they are talking about. And if they say more bread, we know how much bread they are talking about. Adjectives can come between a determiner and a noun. My old coat, but not before a determiner. For example, all my money, both those letter, half its length. इनमें all, both, half जो है वो determiner है. और नंबर 2 पे जो डेफिनेशन थी वो थी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, those conjunctions which join a subordinate or dependent sentence to a principal sentence are called subordinating conjunction. लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन. आप लोगों को बेटा गुज़श्ता जितनी भी डिस्कशन वीडियो में भी ऐसे के हवाले से बताया था कि देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ एन एसे. एक एसे के जो है वो 3 मेजर पार्ट्स होते हैं.
यानी बिगनिंग यानी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, उसके बाद बॉडी और लास्ट पे जो है वो कंक्लूजन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी जो है वो 5 से 7 जो है वो आउटलाइंस पुट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप इंट्रोडक्शन का पैरा, हेडिंग नहीं देनी, वैसे ही पैराग्राफ जो है वो आउटलाइंस के बाद जो नेक्स्ट आप शुरू करें वो इंट्रोडक्शन का होता है, वो मतलब बिगनिंग का होता है, इनिशिएटिव होता है, जिसके अंदर आप टॉपिक जो है वो उसका मतलब क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके वर्ड का मीनिंग बताना होता है, वो कहाँ से लिया गया वर्ड, उसका मतलब क्या है, ये उसके अंदर पुट करेंगे। और इंट्रोडक्शन का जो पैरा होता है उसका लास्ट सेंटेंस जो होता है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट मतलब आगे चल के सारा ऐसे जिसके ऊपर जो है वो बहस होने जा रही है। ठीक है, उसके बाद बॉडी है, बॉडी मटेरियल के अंदर आपने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पुट कर देनी है, यानी उसके अंदर आपने उस टॉपिक की हिस्ट्री, उसकी करंट सिचुएशन, उसके बेनिफिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसके एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, सोशल इश्यूज, जो भी है ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आएगी। बॉडी मटेरियल जो है वो 3 से 4 पैराग्राफ पर जो है वो मुश्तमिल हो सकती है। उसके बाद आगे जो है लास्ट जो इसका पार्ट होता है वो कंक्लूजन का होता है। कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन का भी एक ही पैरा होता है और कंक्लूजन का भी एक ही पैरा, उनको नहीं 2 या 3 पैराग्राफ बनाना, जितने भी पैराग्राफ लिखने हैं वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन के पैरा में आपने फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। ठीक है, कॉमर्स की जो तालीम है उसकी अहमियत के ऊपर आपने लिखना है, तो आप उसके अंदर कंक्लूजन के अंदर क्या लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से स्टेप्स ले, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, या स्टूडेंट्स जो है या बिजनेसमैन जितने भी हैं, वो किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो लें जो कॉमर्स की एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, इन फ्यूचर स्टूडेंट उसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे वेल फैमिलियर हो जाए। ठीक है, इस तरह से बेटा ये आप लोगों ने अपना ऐसे जो है वो कंप्लीट करना होता है। लेंथ भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि 6 से 7 चाहिए, इसकी मिनिमम आपकी लेंथ होनी चाहिए। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, वेल एंड गुड, वो आपकी एबिलिटी है। ठीक है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर लिखना है। ठीक है, चूँकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप ये समझे कि 3 पेजेस हम लोग लिख लें तो बड़ा ज़्यादा लिख लिया, तो ऐसा नहीं है। आप इसके 6, 7, 8 जो है वो कम से कम ज़रूर जो है वो इतने पेजेस का लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ये था बेटा आप लोगों का टेस्ट नंबर 4 जिसकी डिस्कशन आपके सामने रखी। बड़ी उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ जो है वो अपने टेस्ट को चेक कर लिया होगा और जितनी किस्म की इसमें मिस्टेक्स जो है वो आई होंगी उनको भी हाईलाइट कर लिया होगा। ठीक है जी, लास्ट पे बेटा एक ही पैगाम है, strictly follow the precautionary measures to prevent coronavirus COVID-19. Wear a mask, wash your hands frequently, and cover your mouth with sleeve or elbow while you are coughing at any spot, any place. इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, सबको अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।